Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Happy Thursday afternoon to all of you, and thank you so much for tuning into Radio Zindagi this Thursday afternoon. That's September 24th, 2020, and I am Sanjeev, coming live to you from Radio Zindagi studio in Edison, New Jersey. Radio Zindagi, America's biggest South Asian radio network from East Coast to West Coast, and of course we are loud and clear up here on 5:40 a.m. New York, New Jersey, and Connecticut, 13:10 a.m. That's up in Parsippany, Morris County area, 96.7 FM. That's in Edison, Middlesex County. That's Radio Zindagi for you 24/7, streaming live on radiozindagi.com and our Radio Zindagi app for iOS and Android users. The best radio app out there, so must download it and listen to it. Our Facebook page is Radio Zindagi Tri-State, and abhi jo show ki shuruaat hum karne ja rahe hain, you can of course listen to us live on Radio Zindagi and also watch us live on Radio Zindagi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. It's a Thursday afternoon, 3:31 is the time, and you know it's time for the Divine Vastu Talk Show with a very, very renowned Vastu Shastra expert and consultant, and a person who has helped thousands of individuals all over the world when it comes to Vastu, Vastu for home, Vastu for business, and with more than 35 years of experience, one and only Dr. Rewa Kumar with us on Radio Zindagi. Jai Mata Di, Namaskar, welcome to the show, Didi. जय माता दी संजीव, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार जी। थैंक यू। गुरुवार का दिन है, फिर से एक बार हम आपके साथ जुट गए हैं, वास्तु के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपसे जानेंगे एंड उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो दैट मीन्स दैट वी कैन ऑल हैव पीस एंड हार्मनी इन लाइफ, और थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ी सी शांति मिलेगी। एंड वास्तु इज अ वेरी यूनिक साइंस, इट्स एन एशियन साइंस originated from India, but it does make a difference because Vastu is based on the directions, what directions are good and what directions are even better for the positive energies, and what directions not good for certain things to remove negative energies. That's all Vastu is all about. और जैसा हम हमेशा कहते हैं दीदी कि वास्तु for home और business can be very effective, और अब तक हम होम को लेके काफी सारी बातें करते आए हैं और आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है वास्तु फॉर होम को लेके। तो मैं चाहता हूं कि आज हम बात करें वास्तु फॉर बिजनेस, ताकि हमारे जितने भी लिसनर्स हो, एंड इफ दे आर इन दिस बिजनेस देन दे विल गेट सम मोर नॉलेज, जो है कहते हैं ना, ज्ञान मिलेगा उनको इस वास्तु के बारे में। So let's talk about a certain business, which is IT business. As you know, many of our countrymen, Indians जो है, they are into IT business. तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आज इस टॉपिक में आप हमें बताइए कि how वास्तु can help to establish and to grow IT business. जी हाँ, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया है संजीव, हमेशा की तरह। देखिए, क्योंकि ये मैं हमेशा कहती ही हूँ कि वास्तु ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे घर से रिलेटेड है, वास्तु हर चीज से है, आपके बिजनेस से भी है, आपके घर से है, आपके किसी भी तरह का जॉब का एरिया है उसके साथ में है, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो आपके हॉस्पिटल्स हो, हर चीज के साथ है। क्योंकि साइंटिफिकली जो इसका कंसेप्ट है टू बैलेंस एलिमेंट्स, वो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, वो ड्वेलिंग में होते हैं, चाहे वो हमारी घर की ड्वेलिंग ले लीजिए, चाहे हमारे बिजनेस की ले लीजिए। अब एक आईटी कंपनी के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी, क्योंकि आईटी कंपनी अगर एक स्टार्ट करना है, एक स्टार्टअप करना है, तो इट्स रियली अ बिग
बिजनेस, कि जिसको हम ये नहीं है कि छोटा सा स्टार्ट करके कि आप उसको आगे प्रोडक्ट को अगर नहीं बेच पाएंगे, या आईटी कंपनी अगर हमारा जो उसका मेन जो उसका हार्ट अगर वही काम नहीं करेगा तो हम उसको कैसे उस कंपनी को चला सकते हैं। आईटी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। और कि जैसे एक इंसान के लिए जब तक उसका दिल धड़क रहा है तो उसमें जान है, उसके प्राण है, उसी तरह से आईटी कंपनी के जो जान है, उसका जो प्राण है एक ही जगह पे है, दैट इज सर्वर। किसी भी आईटी कंपनी की ग्रोथ अगर है तो उसके सर्वर पे डिपेंड करता है कि सर्वर ही है जो उसकी हार्ट बीट है उसकी, उस आईटी कंपनी को चलाने के लिए। अब अगर वो सर्वर है, अगर वो अपनी सही जगह पे है, तभी वो आपको हेल्प करेगा। तो मैं जो ये स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं सर्वर से ही स्टार्ट करूंगी कि सबसे पहले जो उसकी ऑक्सीजन जो उसको चाहिए उस कंपनी को चलाने के लिए, उसकी जो हार्ट बीट है उस कंपनी के लिए, जो उस कंपनी की ग्रोथ से जुड़ा है, दैट इज सर्वर। और वो सर्वर कैसे चलता है संजीव जी? वो है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक के बिना तो चल नहीं सकता है। यहां से स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी आईटी कंपनी का सर्वर अगर अपनी सही जगह पे नहीं है तो वहां प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब वो सही जगह क्या है? साउथ ईस्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस कर रहा है, फायर को प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर वही सर्वर अगर कहीं पे, जैसे कि बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं, आईटी के क्लाइंट हैं, बोस्टन में भी हैं, शिकागो में भी हैं, कैलिफोर्निया में भी हैं, लॉट्स ऑफ क्लाइंट एंड लॉट्स ऑफ आईटी कंपनीज आई हैव सेट अप अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। अगर कहीं पे भी आईटी कंपनी का सर्वर अगर नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में होगा, वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी। किसी ना किसी कारणवश में वो कंपनी रुक जाएगी, क्योंकि नॉर्थ है वाटर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट है जो आपको कॉस्मिक को ट्रेवल कर रहा है। अगर कहीं पे भी साउथ ईस्ट की एनर्जी को, फायर एनर्जी को जो सर्वर से जुड़ी है, अगर वहां पर सर्वर होगा तो वो उस कंपनी को बिल्कुल बिठा देगा, उस चीज को निकलने नहीं देगा। मैं जरूर अपनी केस हिस्ट्री भी डिस्कस करूंगी। किसी भी कंपनी को, आईटी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमारे को 2-3 चीजें बहुत ही ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमको सर्वर रखना है। दूसरा, ऑनर जो सीईओ है उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। सीईओ को हमेशा संजीव जी साउथ वेस्ट में ही बैठना है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, वो वहां पे उसको स्टेबिलिटी देगा, ग्रोथ देगा। और जहां पर सीईओ को लगता है कि उस कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि किसी कंपनी को चलाने के लिए आपको एक एडवाइजर चाहिए ही चाहिए, जो एज अ मैनेजर कह लीजिए, सीनियर मैनेजर कह लीजिए, आप सबऑर्डिनेट कर दिए, कि जो एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि सीईओ ही वहां पर बैठे, लेकिन उनसे नीचे के लेवल पे जो बंदा होना चाहिए कि जो प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ साथ में एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन ना रखते हुए हर चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके अपने प्रोडक्ट को। उसको अगर कहीं पे भी अगर आप सोचते हैं कि आपने अपना सीनियर मैनेजर है या कोई ऐसा सबऑर्डिनेट, अगर आप उसको साउथ वेस्ट में बिठा देंगे तो वो आप पे क्या करेगा? बॉसिंग करनी शुरू कर देगा। वो आपके ऊपर में खुद अपने जो रूल्स है वो लाएगा और आप एक तरफ से आउटसाइडर हो जाएंगे। So always keep it in a mind that the CEO has to sit in southwest in earth element area to grow. अब उस पोजीशन उस बंदे की कहां पे है? अगर कोई मैनेजर है जो मेन एडवाइजर है उनको, he has to be on a right side of southwest is south। जब, क्योंकि देखिए आप कभी भी देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा दायां हाथ है, he is my right hand। why it is right hand? because कि हमारी पावर है इस हाथ में। अगर आपके मैनेजर साउथ में बैठते हैं, आप खुद साउथ वेस्ट में बैठते हैं, तो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और ये बहुत अच्छा सिटिंग सिस्टम है किसी आईटी कंपनी को चलाने के लिए। सिर्फ आईटी कंपनी को ही नहीं मैं कहूंगी, ये अगर हमारा सिस्टम होता है तो हर कंपनी चली जाती है। लेकिन साउथ वेस्ट में सीईओ को ही बैठना है, किसी एम्प्लॉय को नहीं करना, बिकॉज दे आर एम्प्लॉयज। अब आ जाता है कि जैसे मैंने बताया कि 3 पॉइंट्स मेरे को मेन लेने हैं। पहला, मैंने आपको सर्वर के बारे में बताया कि सर्वर जो हार्ट है उसको हमेशा साउथ ईस्ट में, या वो सर्वर साउथ में रह सकता है या ईस्ट में, लेकिन बाकी सभी डायरेक्शंस में अगर वो सर्वर होगा, क्या होगा कि या तो सर्वर खराब रहेगा या उसी सर्वर की नेगेटिविटी से आपके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी।
अब आता है कि आईटी में अगर आपका कोई भी ऐप बना है वो हमको मार्केट में सेल करना है। अगर आपके एम्प्लॉयज नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे तो वो उसको अच्छे से अच्छा सेल करेंगे, क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट को रोकना नहीं है। जितना वो मार्केट में अगर आपका कस्टमर रिलेशन अच्छा होगा, आपका पब्लिक रिलेशन पीआर अच्छा होगा, तो उतना ही आपकी ऐप की डिमांड ज्यादा मार्केट के अंदर में होगी। तो हमेशा जो भी एम्प्लॉयज हैं, लेट देम सिट इन द नॉर्थ वेस्ट, लेकिन बैठेंगे अगर वो नॉर्थ वेस्ट में, उनको नॉर्थ की तरफ फेस करना है संजीव, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि वो वहां की कॉस्मिक एनर्जी, मर्करी एनर्जी को, पैसे की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। कभी भी अपने एम्प्लॉयज को आप नॉर्थ की तरफ पीट करके मत बिठाइए, क्योंकि एक ये नॉर्थ की तरफ देखिए उनका इनपुट अच्छा होगा। अगर किसी भी एम्प्लॉय का इनपुट अच्छा होता है तो उसका आउटपुट भी अच्छा मिलता है। इनपुट आउटपुट साथ ही साथ चलते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस पर कितना समय दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उनको जिस तरीके से आप सिस्टम अरेंज करिए कि वो नॉर्थ की तरफ फेस करें। नेक्स्ट, दे शुड नॉट बिहाइंड ऑफ ईच अदर, मतलब कि किसी के बाद बैक से बैक करके वो नहीं बैठे। दे हैव टू फेस वन डायरेक्शन एंड दैट इज नॉर्थ। अब इसी तरह से जैसे कि सर्वर के लिए मैंने बताया कि हमारा साउथ ईस्ट में चाहिए। अब जो इंसान अकाउंट्स के साथ में डील कर रहा है आईटी कंपनी के अंदर में, उसको भी सर्वर के साथ वाली सीट लेनी है। अगर आप बहुत इसको विजुअलाइज करिए कि अगर हमारे लिसनर्स जो भी सुन रहे हैं कि इसको जस्ट विजुअलाइज, मैं आपके सामने में एक पूरा विजुअलाइज मैप दे रही हूँ कि अगर आईटी कंपनी का ऑफिस है, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग से अगर कस्टमर्स एंड कर रहे हैं या बिजनेस मीटिंग वाले जो भी अंदर एंटर कर रहे हैं, वो बहुत एक जोश के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएंगे। अब जिस जोश के साथ में इंसान, चाहे वो एम्प्लॉयज ले लीजिए, आप सीईओ ले लीजिए, मैनेजर ले लीजिए, या आप कस्टमर्स ले सकते हैं, या बिजनेस डील्स के साथ में जो भी हैं, नॉर्थ फेसिंग अगर होगा तो वो एक बहुत ही जोश के साथ आएंगे। इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम नॉर्थ साइड में एंटर करते ही राइट साइड में नॉर्थ वेस्ट की तरफ में, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट के ऊपर में, वहां पर अगर आप कह सकते हैं कि ऑफिस हो, जहां पर आपके ऊपर में डेस्क ऑफिसर बैठ सकती है, या स्मॉल मीटिंग रूम भी आप बना सकते हैं कि पीपल हैव कम टू सी यू। बिल्कुल एग्जैक्टली जस्ट बिहाइंड दैट वी शुड हैव अ कस्टमर सर्विस का एरिया, जहां पर आपको प्रोडक्ट को बेचना है, वहां पर वो एम्प्लॉय बैठेंगे जो पब्लिक रिलेशन से डील कर रहे हैं या जो कस्टमर सर्विस को अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब बिल्कुल नॉर्थ वैसे चलते, साउथ वेस्ट इज अ मेन कि जो आपका बड़ा रूम होना चाहिए एंड दैट हैज टू विद सीईओ। अब सीईओ अगर साउथ वेस्ट में बैठ रहे हैं तो वो साउथ वेस्ट में बैठ के वो पूरा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को बहुत इजीली विजिबल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ए कॉर्नर ऑफ दैट प्लेस, दैट इज द बॉटम ऑफ दैट प्रॉपर्टी। वो बॉटम है उस प्रॉपर्टी का। उससे क्या होगा कि अगर वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठे हैं तो वो अपने राइट लेफ्ट तीनों चार साइड में देख सकते हैं, और बैक में उनके क्या होगा, सॉलिड वॉल होगी। अगर साउथ वेस्ट में सीईओ है तो नेक्स्ट टू देम सीईओ के साथ में बैठ सकते हैं, मैनेजर बैठ सकते हैं, सीनियर मैनेजर बैठ सकते हैं, दैट इज इन साउथ। Center of your property, center of your business has to be total empty. कभी भी आप अपने बिजनेस प्लेस का सेंटर को डिप्रेस मत कीजिए, क्योंकि सेंटर ही आपको ग्रोथ करेगा। जो सर्वर से हमारे को एनर्जी मिल रही है, जो हमारी बीट्स चल रही हैं, जो हार्ट से हमारी बीट चल रही है, उसका जो फ्लो है, उसकी जो एनर्जी है, वो आपको सारी डायरेक्शन में से मिलेगी। तो आपको सेंटर अगर कहीं पे ब्लॉक हो गया, या सेंटर में कभी कोई रूम आ जाता है या कभी कोई बाथरूम आ गया, तो वो हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव है। इसी के साथ साथ में हमारा आ जाता है साउथ ईस्ट, जहां मैंने सर्वर का रखने के लिए। अब चाहे आप सर्वर का लेफ्ट ले लीजिए तो आपका साउथ आ जाएगा, सर्वर का राइट ले लेंगे तो आपका ईस्ट आ जाएगा। बट दिस प्लेस इज ए राइट फॉर अकाउंटेंट, क्योंकि जिसने पैसे से डील करना है वो है अकाउंटेंट, और उनकी सीट अगर ईस्ट और साउथ ईस्ट में होगी, सर्वर के साथ होगी राइट या लेफ्ट में, तो वो उससे रिलेटेड एनर्जी को, फायर एनर्जी को एनहांस करेंगे, प्लस वो हमारे को चारों तरफ से हमारे को आप कह सकते हैं कि हमें ऑर्डर्स मिला, प्लस उनकी पेमेंट्स का ध्यान रखना, वो उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। अब आ जाता हमारा ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट का एरिया। दिस प्लेस इज ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयज संजीव। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो नॉर्थ ईस्ट में बैठे, क्योंकि हमारे को वहां से
अपने काम को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, पर आप इनकी विंडोज को कभी बंद नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की जितनी विंडोज खोलेंगे उतना ही हमारे बिजनेस को एक अच्छी प्रॉपर एयर मिलेगी, जिससे बिजनेस ग्रो करेगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप छोटा सा कोई भी प्लांट लगा लीजिए, पौधा लगाइए, आप उसको रोज पानी दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको पैम्पर नहीं करेंगे या उसकी एनर्जी को फील नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेगा। 5, 6, 7 दिन आपको लगेगा कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह से अपनी लाइफ को भी इतना ही खूबसूरत बनाइए कि हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन ऐसे नहीं करें कि किसी धुक्कम धुक्की के बीच में हम इस कॉन्सेप्ट को भूल जाए और इसके रिजल्ट हमें नेगेटिव मिले। जी बिल्कुल दीदी, बहुत मतलब डिटेल में जाके और एक कन्विंसिंग वे में आपने समझाया है आईटी कंपनी वालों के लिए कि साउथ और साउथ ईस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ कितना इम्पोर्टेंट है एंड ईस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने कहीं पे भी वेस्ट डायरेक्शन का वहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वेस्ट में भी, हाँ, वेस्ट में भी हमारे एम्प्लॉयज बैठ सकते हैं, और वेस्ट की तरफ में, साउथ वेस्ट में बाथरूम नहीं बनाएंगे। अगर हमारे को रेस्ट रूम बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो हम वेस्ट में ले सकते हैं या साउथ की तरफ, लेकिन साउथ वेस्ट में नहीं लेंगे। वेस्ट में आप अपने एम्प्लॉयज को भी बिठा सकते हैं, और वेस्ट में अगर आप चाहें तो और भी अच्छा है, अगर वेस्ट में अगर आप अपना कॉन्फ्रेंस रूम बनाए, और वेस्ट में जब कॉन्फ्रेंस रूम बनाए तो हमेशा आपका जो बोर्ड होना चाहिए, इट हैज टू वर्ड्स ईस्ट, क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम वहां है जहां आप पैसों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अपने काम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं कोई ड्रॉ भी कर रहे हैं। तो उसकी एनर्जी को फील करने के लिए, उस एनर्जी का रिजल्ट लेने के लिए बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर आप उस डायरेक्शन को एनहांस करने की कोशिश करें। Very interesting. These directions, how they work, it's just kind of mind-boggling. Anyway, our listeners on Radio Zindagi right now, currently you are listening to the Divine Vastu Talk Show with Dr. Reva Kumar live on Radio Zindagi. If you have any question for your home or for your business, you're most welcome to call in. 732-662-4701 is the studio number. 732-662-4701. और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि private consultation can also be possible with Dr. Reva Kumar, whether for your home, for your business. अगर आपने ये बात सुनी हो IT कंपनीज के लिए, आज ये जो टॉपिक है, अगर ये बात आपने सुनी हो कि how Vastu helps to set up and grow IT business, you can definitely contact Reva ji after the show at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. You can visit her website, which is worldofdivinevastu.com. And any question you have, कुछ भी पूछना चाहते हो अपने घर के वास्तु के लिए या तो बिजनेस के लिए, you're most welcome to call in the studio number anytime. 732-662-4701. 732-662-4701. अच्छा दीदी, अब आते हैं हम आज की टिप के बारे में, और जो आपकी टिप होती है हमेशा बहुत ही वैल्यूएबल होती है एंड हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। अभी जो बात करी आपने वेस्ट डायरेक्शन को लेके, बिकॉज आपने कहा कि अगर आपकी आईटी की ऑफिस हो तो वेस्ट डायरेक्शन में आपका कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए और वहीं पे बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर यू बेसिकली डिस्कस बिजनेस डील्स, यानी कि नेगोशिएट बिजनेस। तो मैं चाहता हूं कि आज की जो टिप हो, आज हमें वो उसके ऊपर टिप दो कि हाउ टू नेगोशिएट बिजनेस एंड हाउ टू नेगोशिएट इट इन योर बेनिफिट regarding your business. That's good. Of course, संजीव जी, बिल्कुल, कि अगर दो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं या आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए हैं बिजनेस से, या कहीं पे आप कुछ फेवर चाहते हैं, तो उसको नेगोशिएट किए बिना नहीं मिल सकता है। एवरीबडी नीड्स इट। अब वो नेगोशिएशन हमारी कितनी सक्सेस होती है, वो जरूर सवाल आता है, और यहाँ पर मैं जो टिप दूंगी कि हम उस नेगोशिएशन को कैसे सक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम कहीं पे भी किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, या आपके ऑफिस में कोई मिलने के लिए आ रहा है, तो नेचुरली आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे। उसमें बहुत जरूरी दो चीजें हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप सीईओ एक आईटी कंपनी के, और सामने संजीव जी आए हैं मिलने के लिए, या रेवा मिलने आई है, संजीव जी हमारे बॉस हैं, तो संजीव जी जब मेरे को आना है, उसकी मैं टिप दूंगी कि पहले का आपको कहाँ बैठना है। आपकी चेयर हमेशा हायर होनी चाहिए विजिटर की चेयर से।
जितनी चेयर आपकी हायर होगी उतनी आपके बीच में पेरेंटिंग पावर आएगी। इट मीन्स कि आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। किसी भी नेगोशिएशन के लिए कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी चेयर हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आई टू आई कांटेक्ट में कभी भी नेगोशिएशन सक्सेस नहीं होती है। अच्छा जी, ओहो, आप हमेशा याद रखिए, आई टू आई कांटेक्ट में आप नेगोशिएशन नहीं है। आप सीईओ हैं, मैं आपके पास में आई हूं, आप नेगोशिएशन करना चाहते हैं और मैं आपसे अगर आई कांटेक्ट कर रही हूं तो मैं जिस चीज को चाहती हूँ वो नहीं मिलेगी, या आप जिसको चाहते हैं वो हम लोग नहीं आएंगे। एक रिजल्ट नहीं मिलके हमारी मीटिंग खराब चली जाएगी। रीजन क्या है? आप बैठे हैं, आप अपना साउथ में बैठे हैं या साउथ वेस्ट में बैठे हैं, या कहीं हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में भी अगर किसी की मीटिंग के लिए गए हैं, कहीं पे बैठे हैं, तो अब क्या है कि हम अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो आप भी सामने दे रहे हैं, वो आई कांटेक्ट हमारे को एक रिपल्शन देगा। कहीं पे हमको लगेगा, डाउट आएगा हमारे में कि कहीं ना कहीं ये चीज की कमी है। जब भी आप नेगोशिएशन में आए या मीटिंग में आए, आप थोड़ा डायगनली बैठिए। डायगनली मीन्स कि सामने टेबल ना करके आप अपनी चेयर को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, एक साइड में लेके चेयर ले सकते हैं कि आप डायगनली कांटेक्ट कर रहे हैं, ना कि बिल्कुल सीधा बैठे कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आप बैठे हुए हो। जी बिल्कुल, आपको थोड़ा सा अपने आप को तिरछा कर लीजिए कि मैं आपको थोड़ा ऐसे, चाहे आप अपने आप को बेंड कर सकते हैं या थोड़ी अपनी चेयर को रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिसको अपने चाहे आपको लेना है, चाहे किसी बायर को, चाहे किसी सेलर को, चाहे सीईओ को, या जो भी हमसे मिलने के लिए आए हैं उनको। ये सबके लिए टिप सेम है, लेकिन डायगनली यू हैव टू सिट। सेकेंडरी, अगर आप ये सोचते हैं कि आप सामने बैठे हैं और एक दूसरे के साइड में बैठे हैं और हमारा राइट साइड में हमारे को जो कॉर्नर है वहां पर हमारे पास स्पेस कम है, while sitting on the corner, मैं बहुत सिंपल टिप दे रही हूँ एंड इट रियली वर्क्स। याद रखिए, सबसे पहले लिसनर्स, व्यूअर्स, हमारे जो भी हैं, मैं आपके साथ जो शेयर करती हूँ ये मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा, जो मेरी अपनी लाइफ पे मैं पहले ट्राई करती हूँ, हाउ इट इज बेनिफिशियल, हाउ मच इट इज बेनिफिशियल, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ और ये आपको वाकई ही फायदे देंगे। सिर्फ आपको उसको फॉलो ध्यान से करना है। जब आप थोड़ा डायगनली बैठे हैं तो आप अपने ग्रीन कलर का पेन, जहां आपको देखते हैं कि लेफ्ट में जगह नहीं है और राइट के बीच में आप डायगनली स्विच कर सकते हैं इस नेगोशिएशन के लिए, तो आपको एक ग्रीन कलर का पेन या ग्रीन कलर का पेपर या ग्रीन कलर का कोई हैंकी आप अपनी टेबल पे राइट साइड में रख दीजिए, ताकि वो जो एयर एनर्जी है, जो खाली एनर्जी थी, उस एयर को हमको भरना है। जैसे ही वो एयर एनर्जी हमारी फिल होगी संजीव जी, हम एक दूसरे को कन्विंस कर सकेंगे। जहां पर वो एयर एनर्जी हमारी मिसिंग है, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो आपकी एयर से रिलेटेड है, और अगर आप सोचते हैं कि राइट साइड का एरिया ब्लॉक है, आप लेफ्ट में होकर थोड़ा डायगनली बैठे हैं, तो आपको लेफ्ट की एनर्जी को, क्योंकि वहां स्पेस है, उस स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड आती है। जब वेस्ट की तरफ से हम बैठे हैं और स्पेस एलिमेंट है और हम देखते हैं कि हमारा राइट ब्लॉक है, हमारे को लेफ्ट की एनर्जी चाहिए, तो वहां पर आप चाहे व्हाइट कलर का हैंकी रख दीजिए, व्हाइट कलर का पेपर रख दीजिए, ताकि स्पेस की जगह मिले। जैसे ही स्पेस मिलेगी तो आप एक दूसरे के व्यूज को समझ सकेंगे। ये एलिमेंट्स की एनर्जी, जो इनकी वाइब्स हैं, ये हमारी चारों तरफ से गूंज रही हैं, चारों तरफ घूमती हैं। सिर्फ आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि हम इन एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। That's why I always advise, मेरे जितने भी क्लाइंट्स बिजनेस से रिलेटेड हैं, मैं उनको स्पेशल एक टिप और देती हूँ कि कभी भी उनका जो टेबल है, जिस टेबल पे वो बैठते हैं, वो कभी भी खाली, मतलब कि उस टेबल के ऊपर में एक व्हाइट कलर का टॉवल जरूर होना चाहिए। जब आपका व्हाइट कलर का टॉवल होगा और आप अपने एल्बो की वजह से इस तरह से बैठ रहे हैं, द वे यू आर सिटिंग ऑन द एल्बो, इट मींस कि आप में अपना कॉन्फिडेंस है और आप उस नेगोशिएशन को जो चाह रहे हैं करने के लिए, इट मीन कि इट रियली वर्क्स, इट रियली एग्जिस्ट्स, so that we have to convince them. उस convincing power को strong बनाने के लिए you have to sit on your elbows, ताकि वो elbows को है, उसकी जो एनर्जी है, हमारी बॉडी की एनर्जी है, वो हमारी वाइब्स के साथ में हमारे एयर एलिमेंट, हमारे स्पेस को बैलेंस करने में हेल्प करती है। वहीं पे ही आप नेगोशिएशन में सक्सेस हो जाते हैं।
इंटरेस्टिंग। अभी जो आपने जो बात बताई, मैं सोच रहा था कि वास्तु डायरेक्शंस जो है वो तो आपने बात बताई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कलर्स भी जुड़े हुए हैं, जैसा आपने कहा कि ग्रीन कलर एंड वाइट कलर, वो भी जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ एक बॉडी लैंग्वेज भी जुड़ी हुई है। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, यू नो। इफ यू वांट टू गेट दैट सक्सेसफुल डील, if you want to benefit out of that, if you want to negotiate a very good business deal, you know, all these things comes into effect and that plays a very major role. लेकिन जो आपने बात करी कि आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करना, अभी अब टू बी ऑनेस्ट विथ यू रेवा जी, मैं अब तक यही मानता था कि जब भी कोई बिजनेस डील्स होती है तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू लुक अवे फ्रॉम द पर्सन, इट कुड बी एन इंसल्टिंग टू द अदर पर्सन। आई कांटेक्ट आपको क्या करना है, डायगनली बैठ के करना है, स्ट्रेट नहीं है। अच्छा, आई कांटेक्ट करना है मीन टू से कि बिल्कुल सीधा हम आंखों से आंखें मिला रहे नहीं। अगर आप डायगनली बैठेंगे तो आप उसको डायगनली देख रहे हैं, और आई कांटेक्ट अगर हमारे को आमने सामने का करना है तो वो वहां पर है कि जहां पर हम किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते हो। समझिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कि जहां आप इंटरव्यू के टाइम पे गए हैं और आप आंसर दे रहे हैं, दैट इज राइट, कि अगर आप आई कांटेक्ट में बैठे हैं। इंटरव्यू के समय कभी भी हमारे को डायगनली नहीं बैठना, कॉर्नर में नहीं बैठना, आप सक्सेस नहीं होंगे उस इंटरव्यू में। सो मैं ये बताना चाह रही हूं कि हमारी जो हाथों की उंगलियां, हमारे 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, सब इन्हीं हाथों में है। यही एनर्जी है जो हमारी ड्वेलिंग, हमारी वॉल्स के साथ जुड़ी हुई है। वी हैव टू बैलेंस देम। जैसे ही हम बैलेंस करेंगे, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारे पे आएगा। हम पॉजिटिव थॉट्स लेंगे, हमारे में कन्विंसिंग पावर होगी, हमारे में कॉन्फिडेंस होगा, हम उस आंसर को सोच सकते हैं, हम लोग उसको समझ सकते हैं एक डिसीजन को लेने के लिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लिसनर्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि फॉर एनी प्राइवेट कंसल्टेशन, फॉर एनी सजेशन, एनी गाइडेंस ऑन वास्तु, यू कैन कॉन्टेक्ट रेवा जी एनी टाइम एट 5108683338. That's a 5108683338. Do visit our website, which is worldofdivinevastu.com. You should actually watch the entire this interview, the show on the Radio Zingi's Facebook page, which is Radio Zingi Tri-State. And if you know someone who's into IT business, please forward this message to them as well, so that way they can look into it and they can follow these certain steps to improve their business, and it will be to their benefit. Once again, every Thursday at 3:30, Dr. Reva Kumar joins us on Radio Zingi, live on Radio Zingi, for the Divine Vastu Talk. And once again, she can be reached at 5108683338. जाने से पहले रेवा जी, मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि आज तो हमने IT बिजनेस को लेके बात करी, लेकिन हमारे में से बहुत सारे लोग डिफरेंट बिजनेसेस में भी है, जैसे हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल मोटल बिजनेस में है, यू नो कन्वीनियंस स्टोर में है, लिकर स्टोर्स है, यू नो देयर आर वेरियस बिजनेसेस। तो मैं चाहता हूं कि ये जो अधिक मास अभी चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में हम ये बिजनेसेस को, अलग अलग बिजनेसेस को लेके डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे लिसनर्स जहाँ पे भी जिस बिजनेस में हो, उनका जो भी बेनिफिट हो सकता है या तो वास्तु का उनको जो नॉलेज मिल सकता है आपके जरिए, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। जी बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी बिजनेस से रिलेटेड हम बात करेंगे। और समय तेजी से भाग रहा है, जाते जाते आईटी कंपनी के लिए एक स्पेशल टिप, डोंट फॉरगेट टू प्लेस ब्यूटीफुल वर्ल्ड मैप ऑन नॉर्थ वेस्ट वॉल, क्योंकि एक आईटी बिजनेस एक ऐसा है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड निकलता है, उसको आप एक जगह पे नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे खूबसूरत सा वर्ल्ड मैप लगा दीजिए, ताकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको उसका फायदा हो। और साथ में अगर आप सोचते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप एक क्रिस्टल का ग्लोब एटलीस्ट अपनी टेबल पे जरूर रखिए। नहीं, ये पॉसिबल है, मैप रखना पॉसिबल है, and it would be a good idea to have map. That's why they say World Wide Web, right? WWW, that's a World Wide Web. It connects the entire world. So this is what, तभी आईटी कंपनी सक्सेस तभी होगी, क्योंकि उसका आईटी कंपनी एक नहीं है, दिस नॉट जस्ट लाइक ए कन्वीनियंस स्टोर कि ये पर्टिकुलर उस एरिया के लिए, नो, इट इज फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उसके लिए बहुत जरूरी है वर्ल्ड वाइड के लिए वर्ल्ड मैप का होना, ताकि इनको हर तरफ से एयर एलिमेंट जितना इनहेंस करेंगे उतना ये ग्रो करें।
दीदी इसी बात से पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड आप इतने पॉपुलर क्यों हो, वर्ल्ड वाइड आपके इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, आपके इतने क्लाइंट्स क्यों, मैं तो क्लाइंट्स तो नहीं कहूंगा, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो वर्ल्ड वाइड है, बिकॉज आपने इतने सारे लोगों की हेल्प करी है, मदद करी है वास्तु के जरिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे साथ रेडियो जिंदगी पे जुड़ने के लिए। एंड नेक्स्ट वीक हम किसी और बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तभी मैं लिसनर्स को बता दूं, इट्स गोना बी अनदर इंटरेस्टिंग शो नेक्स्ट थर्सडे एट 3:30 PM। और ये भी मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स लिसनर्स आपको ईमेल कर सकते हैं, पर्टिकुलर किस बिजनेस के लिए वो चाहते हैं, तो दे आर आल्सो वेलकम। डेफिनेटली मैं उस पर भी कंसिडर करूंगी। चलिए ठीक है, इसी बात को लेके मैं कुछ प्रश्न लेके आऊंगा नेक्स्ट वीक के लिए हमारे शो में, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू संजीव, thank you listeners, thank you Namaskar, thank you, Jai Mata Di. And with that note, we come to the end of the Divine Vastu Talk. This is a weekly talk with Dr. Reva Kumar show right here on Radio Zingi every Thursday at 3:30 PM, 3:32. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.